Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 FY26 Investor Earnings Conference Call for Servotech Renewable Power Systems Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode. There will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need any assistance during this call, please signal an operator by pressing star and then zero on your touchtone telephone. Please note that this conference call is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Raman Bhatia, the Managing Director of Servotech Renewable Power Systems Limited. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, and a warm welcome to the Q4 and full year FY26 earnings conference call of Servotech Renewable Power Systems Limited. Thank you for joining us today. I am Raman Bhatia, Managing Director, and I am joined by our Chief Financial Officer, Mr. Vipin Kaushik. We will walk you through the results, the context behind them, and our outlook, after which we will be happy to take your questions. FY26 was a transformational year for Servotech. We have started the year with our strongest quarter ever recorded as a listed company. Let me start with what defines the year. In Q4 FY26, the quarter just ended on 31st March 2026. Our standalone revenue was 211.2 crores, growing 67% year-on-year. Our standalone EBITDA was 23.2 crore, growing 70% year-on-year. And our standalone PAT was 11.7 crore, growing 49% year-on-year. On a consolidated basis, Q4 revenue was 219, up 49% year-on-year, and consolidated EBITDA was 24.2 crore, up 81% year-on-year. This is not a one-quarter phenomena. The strength is in the second half of the year. Standalone revenue in H2 FY26 was 411 crore year-on-year, while EBITDA margin in H2 was 12%, the highest in our listed history. In short, we entered FY27 with our strongest run rate ever, and with capacity already commissioned to support continued growth. Coming to the full year, on a standalone basis, revenue from operations was 637 crore, growing 8.4% year-on-year on a higher basis of 587 crore in FY25. Operating EBITDA was 74.2 crore, growing 26.5% year-on-year. EBITDA margin expanded to 11.6%, the highest in our listed history, up from 9.7% in FY25 and expansion of 161 basis points. Profit after tax was 36.3 crore, growing 8.3%. The reason PAT growth lagged EBITDA growth was that we commissioned 64 crore of a new manufacturing capacity during the year. The full year impact of higher depreciation and finance cost from the commissioning is reflected in the profit and loss. From FY27 onwards, we expect the capex flow through to be lapped, and the operating leverage should fully reflect in the bottom line. On a consolidated basis, FY26 revenue was 675 crore compared to 676 crore in FY25. Broadly flat. Consolidated EBITDA was 71 crore, growing 22%, while profit after tax attributable to shareholders was 33.5 crore, broadly in line with FY25, 32.7 crore. I want to address the consolidated revenue directly. The flat consolidated number compared to standalone growth of 8.5% reflects a deliberate scale down of low margin trading activities in our medical equipment subsidiaries. Rebis Medical Device. Rebis revenue moved from 98 crore in FY25 to 32 crore in FY26. Correction. As we focus capital on our higher margin core renewable energy and EV businesses. Excluding this single subsidiary effect, our consolidated revenue grew approximately 12% year-on-year. The PAT impact of Rebis scale down is minimal. The subsidiary remained profitable just as a lower scale. Operationally, FY26 was a year of significant capability building. First capacity, we commissioned new manufacturing line for solar hybrid inverters and grid-tied models, which is now our flagship growth product for battery energy storage systems
and for a lithium-ion battery packs. We also added quality testing and R&D infrastructure. Total CapEx for the year was 64 crore. Importantly, this CapEx program is now substantially complete, and it will help us to deliver the growth ahead in FY 26-27. We expect 27 CapEx to moderate to a lower run rate, funded entirely from internal accruals. Second, product mix. The shift towards solar inverter and higher capacity DC chargers in the 120 kilowatt to 360 kilowatt models and BESS is the structural reason for our 200 basis point margin expansion. This is not a one-year benefit. As solar DC chargers and BESS volume grow, we expect this margin profile to be sustained or modestly improved. Third, retail and brand expansion. Our retail channel, which was just 2 crore per month in FY 22, is now running at approximately 25 crore per month, with major growth expected ahead. To support this scaling, we have signed brand ambassador, run TV advertisement campaigns, and undertake extensive above-the-line and below-the-line marketing activities to create a structured platform for these brand-building initiatives. We have organized our event management, dealer engagement, and content production capabilities through 3 group entities: Servotech Sports and Entertainment, Hearts and Pixel, and our investment in cricket through the Siliguri Strikers franchisee. Cricket is the most powerful brand-building platform in India, and these initiatives are directly supporting the retail channel scale-up that drove our FY 26 growth. Fourth, EPC and project execution. Our government EPC business, including state EV charging tenders and railway projects contract, has grown into a meaningful portion of revenue. We have also strengthened our institutional relationship with railway and the major oil marketing companies, supported by a strong order pipeline. Now, I am talking about balance sheet, working capital, and FY 27 plans. I want to take a moment to address our balance sheet movement directly because I expect it will be on your minds. Our standalone borrowing increased from 75 crore to 196 crore during the year. Our trade receivables increased from 155 crore to 243 crore. Operating cash flow was negative for the year. These movements reflect 3 specific business factors, and each has a clear path to normalization in FY 27. First, CapEx and asset purchase of our 121 crore of fresh debt during the year. Approximately 79 crore was deployed into a capital expenditure and asset purchase and investment in solar PV manufacturing company, including the new manufacturing capacity I mentioned earlier. This is a invested capital, not consumed working capital. The asset base grew from 64 crore to 117 crore, an increase that support our future revenue capacity. Second, receivables. The increase in receivable has 2 specific drivers. Approximately 40 crore is stuck with oil marketing companies, IOCL, BPCL, HPCL, due to infrastructure-related payment delays. We have already engaged with our bankers on this, and we are working through commercial mechanism to release this position. Approximately 60 crore is in respect of railway projects which were work in progress as of 31st March. Our payment terms on these contracts are 60% against delivery and 40% against commissioning. As these projects commissioned in the current financial year, the cash will flow in. Together, these 2 specific situations account for approximately 100 crore of our receivable increase, and both have a clear path to release. Third, working capital cycle structure. As our government EPC business has grown, our working capital cycle has structurally lengthened. Milestone billing, retention money over 5 years, perform bank guarantees, and the absence of mobilization advances are inherent feature of this business model. We are addressing these through specific operational levers in FY 27, including incremental growth in channel sales, where working capital is less than 30 days, conversion of retention money to bank guarantee instruments to release working capital, and dedicated treasury follow-up on running bill realization. Looking forward, FY 27 is a year of operational consolidation. We have planned no fresh long-term debt. CapEx moderate significantly. Our focus is on 3 measurable outcomes: restoring positive operating cash flow, reducing our gearing back below half a turn over the year, and bringing receivable collection back to industry typical level. Importantly, the order book and the run rate
we have cited Q4, which give us a confidence in our top line trajectory while we execute this normalization. Now hand over to Vipin Kaushik, CFO. Thank you. Just to summarize the key ratios for the financial FY26 on a standalone basis, operating EBITDA margin is 11.6% compared to 9.7% in FY25. Interest coverage on EBITDA basis was 6.2 times, which was well above the stress level. Debt to equity at the year-end 0.74 times. Net debt to EBITDA is 1.8 times within comfortable lender ranges. Current ratio is 1.5 times. Return on equity is 14.7%. Earning per share basis, basics 1.61 per share, growing 8% year on year. Our credit rating from Informatics remains at BBB+ with a stable outlook on the long term and A2 on short term. An upgrade we received in September 25. We engaged to continue proactively with the rating agencies. We will hand over to Saman sir. Looking ahead to FY27, we see strong demand visibility across our core segments: solar, inverters, DC chargers, driven by the central government EV infrastructure rollout, BESS, driven by both grid scales and behind the meter application, and our project execution pipeline supported by healthy order book. FY27 will be a year of operational consolidation built on FY26 capacity additions. Our focus will be on operating leverage, flow through, working capital normalization, and disciplined capital allocation. Margin expansion in FY26 was structural, and we expect to sustain a modestly improve from current level. We will continue to engage proactively with our bankers, our rating agencies, and our investor community throughout FY27. With that, I would like to thank you for your time and your continued support. We can start with the questions. Please open the line for questions. Sure, sir. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may enter star followed by 1 on their touchtone telephones. If you wish to remove yourself from the question queue, you may enter star and 2. Participants are requested to please use only handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the queue assembles. The first question is from the line of Randhir Kumar Singh from Randhir HUF. Please go ahead. Randhir, your line is unmuted. You may go ahead and ask your question. Okay. Hello, sir. Thanks for the opportunity. जी बताएं रणजीत जी. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने 4 पैटेंट फाइल किया उसमें 3 ग्रांट हो गया है, तो ये जो चारों पैटेंट हैं ये किस नेचर के हैं और फर्दर कोई आईपी को क्रिएट करने पे और कुछ काम चल रहा है? जी सर, ये जो हैं ये सोलर में और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स में हैं, अलग अलग टोपोलॉजी पे है. इसके बारे में जो हमने पेटेंट्स आपसे शेयर किए हैं उसके बारे में डिटेल्ड वहां पर सब लिखा हुआ है कि वो पेटेंट किस बारे में है, आप उसको पढ़ सकते हैं. एंड जो नंबर 2 है वो बहुत सारी चीजों पे काम चल रहा है ऑलरेडी, तो वो तो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि पेटेंट लेने के लिए अगर मैं उसको डिस्क्लोज करूंगा तो वो पेटेंट मैं ले नहीं पाऊंगा. राइट, तो इतना जरूर आपको एश्योर करूंगा एज ए इन्वेस्टर कि हम लोग उस पर काफी काम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे बहुत सारा काम कर रहे हैं. और सर मैंने देखा कि फिक्स्ड एसेट में आपका लगभग काफी जंप हुआ है, लगभग 4-5 टाइम्स के करीब. तो ये फिक्स नेचर का जो आपका ये फिक्स्ड एसेट है, ये क्या इस FY27 से इस रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इसमें आएगा? ये बात मैंने अभी अपनी कमेंट्री में दिया है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि हाँ ये आएगा. ये इसीलिए किया गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सोलर इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर बना पाए और ज्यादा से ज्यादा हम चार्जर्स बना पाए और हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी बना पाए. उन्हीं के लिए ये कैपेक्स किया गया है. और सर एक चीज की आपने पिछले मैं काफी टाइम से आपको ये आपके कंपनी को कॉल कर रहा है, ये ट्रैक कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने पहले भी 1 साल पहले 1.5 साल पहले ये पाया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की तरफ से ईवी चार्जर लगाने इंस्टॉल करने के लिए डेवलप नहीं हुआ था. तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी हो चुका है या उस पर कितना प्रोग्रेस अभी बाकी है, या
और मतलब ये उन जानना सब पे चाहता हूँ। काम चल रहा है, उसी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बदल दी है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम जो है वो प्राइवेट पार्टी को दे दिया गया है कि आप डेवलप करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो मॉडल बदल दिया गया है, अब ये पीपीए मॉडल में जा चुका है। तो सर FY27 में ईवी चार्जर का जो शेयर है रेवेन्यू में FY27 में बढ़ेगा या फिर कुछ कांस्टेंट रहेगा कैसा? सर अभी भी जो शेयर है अगर आप देखेंगे तो वो करीब करीब 40% के आसपास है, अभी इतना ही है। हाँ लगभग अगर आप देखेंगे 10, 20, 40, 43% के आसपास है चार्जर्स का जो शेयर है, लगभग 43% है। और 51% जो है वो सोलर है हमारे रेवेन्यू शेयर में। तो रेवेन्यू शेयर ईवी चार्जर्स का यहाँ से बढ़ सकता है फर्दर? इसके आसपास ही रहेगा, क्योंकि उतना ही काम हम सोलर में भी तो कर रहे हैं। तो अगर जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा ना। तो परसेंटेज डिपेंड कुछ और चीजों पर करती है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you. We have a question from the line of Prashant Pardesi, an individual investor. Please go ahead. हेलो। हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, क्या हम्म। कंपनी किसी बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या ऑटोमोबाइल कंपनी के पार्टनरशिप पर काम कर रही है क्या? पार्टनरशिप माने? मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है क्या, ऐसा कुछ? बंद करा दो भाई। हाँ हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ हम लोग कुछ कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ एसी चार्जर्स के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनबोर्ड चार्जर के लिए काम कर रहे हैं। या फिर हम लोग बस या बड़े ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ बड़े चार्जर्स के लिए काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 120 किलोवाट, 240 किलोवाट, 360 किलोवाट और बड़े चार्जर्स के लिए हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और ऑलरेडी वो काम चल रहा है। अच्छा ठीक है सर। और मैंने पिछले बार भी एक क्वेश्चन पूछा था सर आपको, क्या? BES बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का डिस्पैच और डिलीवरी कब से शुरू होने वाला है सर? शुरू हो चुका है सर, ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। जनवरी से शुरू हो गया था। अगर आप अच्छा लास्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में थे तो मैंने बोला था जनवरी से शुरू हो जाएगा। जनवरी से शुरू हो चुका है और अब धीरे धीरे वो पिकअप कर रहा है, चीजें स्ट्रीमलाइन होती चली जा रही है। अच्छा अच्छा। और Q1 में कैसे रहेंगे नंबर सर कंपनी के, आपकी क्या उम्मीद है? सर मैं फॉरवर्ड जो है ग्रोथ प्लान आपको नहीं बता सकता, मुझे अलाउ नहीं करता है जो गवर्नमेंट के जो सेबी के रूल्स हैं, तो उसके लिए माफी। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हम उससे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन आपको H2 में दिख गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो H2 को हम इसी तरीके से लेके आगे बढ़े तो आपको आगे भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है सर। सर और कोई नया बिजनेस में एंट्री करने का प्लान है क्या सर कंपनी का? नहीं सर, नया कोई बिजनेस ऐड नहीं कर रहे हैं। नई इन प्रोडक्ट्स में हम कुछ ना कुछ इनोवेशन पे काम जरूर कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट लाइन कोई ऐड करने का भी प्लान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत स्कोप है और हम उस पर काफी काम कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. As a reminder, if you have any questions at this time, you may enter star and one. The next question is from the line of Mahesh Vaz, an individual investor. Please go ahead. हाय नमस्कार रमन जी, बधाई अच्छे रिजल्ट के लिए। थैंक यू। दो चीजें जानना चाहता था। एक जो लिथियम आयन बैटरी सेगमेंट अपन ने चालू किया है और सुल्तान जो ब्रांडिंग किया है, तो उसमें कैसा क्या रिस्पांस रहा है उसके बारे में। और दूसरा लास्ट 3-6 महीने में जो कुछ अपना कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने पे काम हुआ है, उसका अगर थोड़ा डिटेल में बता पाए आप। जी सर, पहला तो ये है कि जो हम लोग लिथियम की बात करते हैं, लिथियम बैटरीज की, तो हम लोगों ने वो बैटरी ऑलरेडी शुरू कर दी है। बहुत सारे ओईएम्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जो ई रिक्शा बनाते हैं, तो उनको हमने बैटरीज देनी शुरू कर दी है। लेकिन जिनको भी बैटरी आप देते हैं तो प्रोडक्ट में बैटरी को अप्रूव कराना, ICAT से अप्रूवल लेना उनके रिक्शा के साथ, तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट उस सब के अंदर रिजल्ट आते चले जा रहे हैं, तो इसलिए जो पिकअप है वो थोड़ा भी स्लो मिलेगा आपको। बट साइमल्टेनियसली हम लोगों ने सोलर के लिए भी बैटरीज के कुछ पैक निकाल दिए हैं, 1.2 किलोवाट, 2.5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट,
एंड वो मॉडल भी हमने अपने चैनल सेल्स में बेचना शुरू कर दिया है विद सोलर। एंड सोलर हाइब्रिड का जो हमारा मॉडल है या जो सोलर ग्रिड टाइड इन्वर्टर है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हमारी करीब 12 से 15 हजार यूनिट्स पर मंथ की आ चुकी है और हमने उसको अचीव कर लिया है। और मैंने अपनी कमेंट्री में ये बात बताया कि 2022 में जब हमने चैनल सेल्स को दोबारा से शुरू किया था 2006 के बाद, तो हमारा पर मंथ का जो एवरेज रेवेन्यू था वो करीब 2 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के लास्ट मंथ में हमने 25 करोड़ से ऊपर ले गए हैं उसको। नाउ वी हैव क्रॉस 25 करोड़, जो हमें लगता है अभी हम और बढ़ा देंगे इसको। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। प्लस हम सर्विसेज पे काफी काम कर रहे हैं। एआई का काफी हमने यूज करना शुरू किया है। एआई को हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज कर रहे हैं, बहुत सारे इंफ्रा के अंदर बहुत सारा यूज कर रहे हैं, डैशबोर्डिंग में बहुत यूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में यूज कर रहे हैं, और चैनल सेल्स के लिए हम काफी यूज कर रहे हैं, कस्टमर एक्विजिशन पे काफी यूज कर रहे हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। दिस वाज थैंक यू। 2 questions. Thank you. To ask a question, please enter star and 1. The next is a follow-up from the line of Ranveer Singh. Please go ahead. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो फिक्स्ड एसेट क्रिएट हुआ है इसका यूटिलाइजेशन लेवल क्या है सर, परसेंटेज टर्म में, या रहेगा FY27 के लिए? FY27 में हमारा टारगेट तो ये है कि हम उसको 100% यूटिलाइज कर लें, उसी पे काम कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वार्टर से स्टार्ट रहेगा? फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हम बहुत जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। मतलब कि Q2 Q3 से कर सकते हैं? यस, Q2 से। Q2 से, ओके। सर ये मैं थोड़ा परसेंटेज टर्म में मैं ये देख रहा था कि टॉप लाइन क्वार्टर ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेम क्वार्टर में 66% बढ़ा है, और ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेस पे पूरा साल का अगर कंपेयर करें तो मतलब कुछ खास ग्रोथ नहीं रहा है। तो ये FY27 के लिए परसेंटेज टर्म में एक टॉप लाइन बता सकते हैं नहीं बता ओवर सकता था। FY26? मैं पहले भी अगर बोल चुका हूँ कि मुझे अलाउ नहीं करता कि मैं कोई भी ऐसी बात कहूँ जिससे इन्वेस्टर अलग तरीके से जो है। मिनिमम नंबर पर मिनिमम मैं माफी चाहूंगा, इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट मैं यही कहूंगा कि जो पिछले 5 सालों 6 सालों में हमने किया है आप उसको देखें। हमारी कोशिश है कि हम उसको मेंटेन करें, सिंपल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Gitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. यस राइट, थैंक यू सर। आपको बहुत बहुत बधाई Q4 नंबर के लिए, बहुत अच्छे नंबर थे आपके। सर मेरे 2-3 सवाल है जो मैं आपको पूछना चाहूंगा, शायद थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा। तो सर आपने जब अपने इंट्रोडक्शन में रिटेल चैनल की बात की आपने, तो उसके जो 2 से 25 करोड़ के आसपास पहुंचा है जो आपके प्रेजेंटेशन में भी है, ये रेशियो सर आप स्पेशली 2027 के लिए कैसे देखते हैं बिटवीन the PSU and retail channel? How this would basically look like for your annual probably sales? नहीं, मैं 1 मिनट का देखा, मैं सवाल भी समझ पाया। आपने जब 2 से 25 कहा कि मैं सवाल समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हैं हम? एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिटेल चैनल का और बाकी अदर चैनल का रेशियो आप कैसे देखेंगे 2027 के लिए इन टर्म्स ऑफ योर सेल्स? मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 50% से ऊपर आ जाएगा रिटेल और चैनल का। 50%? यस, 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यू या जो भी आप टेंडर रेवेन्यू वर्सेज चैनल एंड रिटेल की जब बात कर रहे हैं, तो वी विल ट्राइंग टू क्रॉस मोर देन 50% एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। ओके। और सर ये दोनों चैनल में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे डिफरेंट है? जैसे रिसीवेबल वगैरह पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? आप थोड़ा ज्यादा अगर डिटेल में बता सके, उसमें क्या नंबर ऑफ डेज होते हैं जनरली रिटेल के लिए और क्या होते हैं गवर्नमेंट के लिए, अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सके। सर अब तो आप बिजनेस स्ट्रेटेजीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है वो जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो टर्न की प्रोजेक्ट होते हैं। टर्न की का मतलब होता है कि पहले आपको उनको मटेरियल बनाना है, फिर आपको बेचना है, फिर आपको पहुंचाना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, कमीशनिंग करना है, उसके बाद पैसे मांगने हैं। यह है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। अब कोई भी सोलर का प्रोजेक्ट जब आप ऐसा करते हैं तो एवरेजली आपको 70 दिन से लेकर 120 दिन लगते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, छोटे से छोटे प्रोजेक्ट को। तो बाय डिफॉल्ट आपकी पेमेंट
वहां तक पहुंच जाती है। ठीक है, कुछ पार्शल आ भी जाता है आपको, लेकिन एवरेजली आप वहां पहुंच जाते हो। करेक्ट। और अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में जब आप बात करते हो तो वो एवरेज हो जाता है, तो आप मान लीजिए 70-80 दिन पे पहुंच गई बात। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपके साथ या आपका चैनल पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है, आप उसको प्रॉफिट शेयर करते हो, तो आगे का सारा जिम्मा उसका होता है, तो वो आपको पैसा उस दिन दे देता है जिस दिन वो आपसे माल लेता है। तो आपका साइकिल वैसे ही हाफ हो जाता है। तो अगर वहां पैसा आपके पास 70-80 दिन में आ रहा था, तो यहाँ पैसा आपको 25-30 दिन में या 35 दिन में आ जाता है, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री रेवेन्यू, इंक्लूडिंग इन्वेंट्री टर्नओवर। होप आप मेरी बात सर समझ लीजिए। हाँ सर, हाँ थैंक यू। सर। और ये सवाल को मैं थोड़े और तरीके से पूछूं कि हमारे जो वर्किंग कैपिटल के थोड़े प्रॉब्लम्स है, ओके, डू यू थिंक वी हैव पीक्ड और पीक अभी आना बाकी है? ओके, इट वुड टेक अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स, ओके, फॉर दिस टू बेसिकली स्टेबलाइज। नहीं, पीक की बात तो सर हम ऑलरेडी जो हमारे करंटली दिखा रहा है, बैलेंस शीट्स और बुक दिखा रही है फाइनेंशियल, वो एक आम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पीक ही है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से पीक इसलिए नहीं है क्योंकि लास्ट क्वार्टर का ही रेवेन्यू अपने आप में 200 करोड़ के ऊपर है। तो अगर मैं सर ये मान लूं कि 200 करोड़ का रेवेन्यू है और मेरा जो आउटस्टैंडिंग 230-40 करोड़ है, जिसमें से 100 करोड़ मेरा कमिश्निंग वाले प्रोजेक्ट में है, जो कि एक स्टैंडर्ड टर्म्स है, तो उसके हिसाब से तो मेरा जो रिसीवेबल है वो तो 80-90 दिन का भी नहीं है। बट अगर हम स्टैंडर्ड एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज अराउंड मोर देन 140 डेज, 138 डेज के आसपास है। ओके, हेलो सर, थैंक यू। यस सर, आई एम लिसनिंग। जी, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर Thank you. To ask a question, you may enter star and one. We have the next question from the line of Jay Shah from HDFC Securities. Please go ahead. Hi, sir. I just wanted to ask a couple of questions that what is the revenue breakup in terms of so the EV and प्रोडक्ट वाइज आप प्रोडक्ट वाइज पूछना चाह रहे हैं? Sorry, yes, product wise, yes. Split. You want to ask प्रोडक्ट वाइज और मतलब करेक्ट? So revenue contribution in terms of each and every product, like the split of correct. Solar products we are calculating in total, so it is around 51% of the total revenue. Okay. And if we are talking about DC chargers, so it is around 15%. And if we are talking about AC and small chargers, then it is around 27%. And energy storage is still only 1% because it has just started. And power is again around 1%. INC and AMC, which will become a very big chunk in coming years, that is around 4%. So its total is around 100%. Okay, and the margin contribution similar to that, what would Margin be on is मोटा मोटी से जैसे ही रहता है, क्योंकि जीपी पे जब हम बात करते हैं तो उसको नीचे हमने अभी उसको बाइफिकेट करना शुरू नहीं किया है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट मोटा मोटी एक जैसे ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे खर्चों को अलग अलग करना बहुत आसान नहीं है। बैकएंड के जो आपके वेयर हाउसिंग के एक्सपेंसेस हैं, जो प्रोडक्शन लाइन के एक्सपेंसेस हैं, उनको प्रोडक्ट पे लोड करना थोड़ा सा टेढ़ा है और शायद हम अभी उतने सक्षम नहीं है और उतनी जरूरत लगी भी नहीं है। बट यस, आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा बारीकी से देखना शुरू करेंगे। Okay, ठीक है। And like going forward for FY27, 28 onwards, so what are your plans in terms of growing the company in towards like solar based, or you are like planning to penetrate more in EV segment? So like I can see in the presentation, but I just wanted to know from you like what is your view for like couple of years down the line? सर मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि जिससे बाकी के जो और भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं जो सुन रहे हैं या इसको कल भी सुनेंगे या आगे भी पढ़ेंगे, मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम जो ईवी चार्जर्स कर रहे हैं या जो हम सोलर कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये सब रिन्यूएबल पावर के ऊपर है। हम ग्रीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं, राइट? तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अलग है। हमारे लिए कोई दूर नहीं है, हमारे लिए सब एक है, बिकॉज हम इसको इन टोटल जो देख रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी देख रहे हैं, राइट? और तीसरी बात,
जब हम कहते हैं कि अलग नहीं है, तो मैं इसको अब आपको और मिक्स करके बताता हूँ कि जो अभी हम चार्जर कर रहे हैं, इसमें हमने जो पहला चार्जर इंस्टॉल किया था लास्ट ईयर में, वो इंस्टॉल किया था विद अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज। दैट मीन नाउ अवर चार्जर विद सोलर विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज आल्सो। तो ईवी चार्जर विद एनर्जी स्टोरेज, दैट इज नंबर 1। ऐसे जब हम वहां करते हैं सोलर, तो एनर्जी स्टोरेज इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ईवी, एनर्जी स्टोरेज इज अ पार्ट ऑफ द सोलर। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसको बहुत ज्यादा दूर करना बहुत आसान नहीं है। ठीक है। सो बिकॉज मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि like going forward, so on, in terms of capacity, and हाँ in terms of sorry. हाँ, इस बात का जवाब देना चाहूंगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो इसका मैंने पहले भी अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये जवाब दिया था, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर हम जब बनाते हैं या हम जब सोलर इन्वर्टर्स बनाते हैं, तो इसमें 70-80% जो काम है ना, वो कॉमन है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, तो वही एसएमटी मशीन चलती है, वही ईएमएस का तरीका है, वही मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो हमें फैक्ट्री में कोई बहुत ज्यादा अल्टरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई उसके लिए एक अलग सेटअप होगा। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि जब मैं कहूंगा कि मुझे रोटोमोल्ट अगर बेंचेस बनानी है तो उसके लिए एक अलग टेक्नोलॉजी है, और जब मैं इंजेक्शन मोल्डिंग की बात करूंगा तो एक अलग टेक्नोलॉजी है, या मुझे जब हाउसिंग बनानी है तो शीट मेटल का एक अलग काम है, वो सीएनसी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो मोर देन 70-80% जो प्रोसेसेस है वो बहुत कॉमन है। तो हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है वो सपोर्ट करती है। बट यस, जो हमने अपना थॉट प्रोसेस है वो बड़ा क्लियर है कि इसकी जो रेशियो है वो 60-40 के बीच में कहीं रहेगी। 60% सोलर एंड 40% के आसपास ईवी। Okay. And going forward, what would be the like guidance? Like I know that you are not willing to give exact numbers, but in terms of percentage or मतलब so that you देखो can ऐसा है विलिंग पूरी है, विलिंग में कोई इशू नहीं है। क्योंकि मुझे जो बोलना है वो मैं जानता हूँ। अगर मेरे को नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ जाना है या कंपनी को कहाँ जाना है, तो कंपनी जाएगी कहाँ से? इसका मतलब मैं तो पूरी तरह से अपने आप को इंश्योर कर रहा हूँ और अपने तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन उसको बोलने में प्रॉब्लम ये होती है इन्वेस्टर के लिए करेक्ट, बट इन्वेस्टर के लिए जस्ट किसी भी बात का कोई भी मतलब निकाला जा सकता है, और उस मतलब को लेके कोई भी चीज किसी भी तरीके से नेगेटिव भी ली जा सकती है, पॉजिटिव भी ली जा सकती है। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात करने से बचने के लिए ही सेबी ने गाइडलाइंस ड्राफ्ट की है, और हम सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, या पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी हो सकता है कोई गलती हमसे हो जाए, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं जो हमें सिखाया गया है। क्योंकि हम जब आए थे तब हम जब शुरू हुए थे काम करने में, तो हम लिस्टेड कंपनियां कैसे चलती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ये सीख के नहीं आए थे। हमने तो काम करना सीखा था। फिर लगा कि हमें लोगों को साथ जोड़ना चाहिए, जोड़ा, और लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने हमारे साथ पैसा बनाया। हमने लोग इन्वेस्टर्स के पैसे बनाने के लिए काम नहीं किया था, हमने काम किया था कि हम कर रहे हैं और हम पैसा बनाएंगे तो हमारा इन्वेस्टर ही बनाएगा। तो कुछ इन्वेस्टर्स का भरोसा रहा हमारे पे, और कुछ हमारे काम का फल मिला, जिससे सबका भला हो गया। राइट। तो मैं सिर्फ इसलिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि बहुत दूर नहीं कहता मैं, पिछले 5 सालों में जो कुछ किया है उसको रिपीट करने की इच्छा है, और उसी के लिए पूरे दिल से काम कर रहे हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. We have a follow-up from the line of Gitesh Parmar, individual investor. Please go ahead. थैंक यू सर। मुझे आपसे डीसी चार्जर के बारे में पूछना है। जो हम लोग नए रेंज की बात कर रहे हैं, 120 to 360 kV रेंज डीसी चार्जर, कितने परसेंटेज हो गए जो हाई रेंज में होगा? अभी इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ सर आपको कि ये कितना होगा या कितना नहीं होगा। इसमें अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं इतनी आसानी से तो आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा अभी ऑन कॉल, कि वो क्या होगा और कितना होगा। मैं ये भी नहीं जानता कि आप इससे समझना क्या चाह रहे हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप क्यों समझना चाह रहा हूँ कि सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या, ओके लेट मी आस्क इट डिफरेंट वे सर। और कोई है चार्जिंग कंपनी जो हमें ये रेंज में चार्जर प्रोवाइड करती है? और दूसरी बात ये है कि ये वाले चार्जर का मेजॉरिटी डिप्लॉयमेंट कैसे होता है, कहाँ पे होता है? मतलब अब आपका सवाल थोड़ा सा मैं समझ पाया, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा है, जब हिंदुस्तान में गाड़ियां आनी शुरू हुई थी या दुनिया में गाड़ियां बननी शुरू हुई थी, अगर आप भी देखें
चाहे वो मोबाइल की बात करते हैं, तो जब पहले कभी मोबाइल आता था तो उसके अंदर एक बहुत छोटी सी बैटरी होती थी, ठीक है, और वो उसकी बैटरी कंजम्पशन ही बहुत कम होती थी। अगर हम आज से 10-15 साल पुराने चले जाए हैं आईफोन वगैरह से पहले में, तो जो नोकिया के फोन आते थे या एरिक्सन के फोन आया करते थे, उनमें छोटी सी स्क्रीन होती थी, तो उसके अंदर बहुत छोटी सी बैटरी हुआ करती थी, और वो बैटरी पूरा दिन चलती थी, इवन 2-2 दिन चलती थी। आपको याद है? आपको शायद मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ सर, तो उसके चार्जर भी छोटे होते थे। यार। फिर जब हाँ। ये स्मार्टफोन का जमाना आया, और जो अभी हम स्मार्टफोन को जिस तरीके से यूज करने लग गए हैं, लगभग कंप्यूटर की तरह यूज करते हैं। जो काम किसी जमाने में हम सिर्फ कंप्यूटर पे किया करते थे, लगभग उसका 70-80% काम हम आज की डेट में अपने मोबाइल पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मोबाइल हमें दिन में 2-2 बार चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि काम हो नहीं पाता। सेम ऐसा ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हो रहा है। जब गाड़ियां आई थी तो उनकी बैटरियां भी छोटी थी, उनकी कंजम्पशन कम थी। अभी बैटरियां भी बहुत बड़ी हैं, और रेंज एंजाइटी को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी रेंज की गाड़ियां आ रही हैं। तो जब ऐसी गाड़ियां आनी शुरू हुई और बसेज आ रही हैं और ट्रक्स आ रहे हैं, तो आने वाला टाइम बड़े चार्जर्स का ही है। तो बड़े चार्जर में जाना ही होगा। तो हमारे साथ सर्वोटेक के साथ अच्छी बात यह है कि हम हमेशा से इनोवेटिव रहे हैं। जहां लोग जाना शुरू करते हैं, सोचते हैं हम उससे पहले वहां पहुंचते हैं, यही टारगेट रहा है। तो इसीलिए उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। आने वाला टाइम बड़े चार्जर का ही है। ओके और मेजर सर, और ये पॉसिबल होगा वैल्यू टर्म्स में? ये जनरली ये चार्जर्स की क्या वैल्यू टर्म्स होती है, मतलब एक चार्जर के लिए, ये बड़ी रेंज के 120 या 360 के? सर आज की डेट में जो स्कूटर खरीदता है कोई टू व्हीलर इलेक्ट्रिक, उसका चार्जर मिलता है 1500 रुपए का, ठीक है। और जो ये बड़ी गाड़ी का मैं चार्जर बोल रहा हूँ, ये चार्जर है 15 लाख रुपए का। अब आप ये सोच लो कि वो 1500 रुपए वाला चार्जर कितने चार्जर बेचेगा कि वो एक 15 लाख रुपए की वैल्यू को मैच करेगा, और हमें 15 लाख के कितने चार्जर बेचने हैं, उस वैल्यू को क्वांटम को रेज करने के लिए फर्क है। टेक्नोलॉजी कितनी आप कर सकते हैं, कितना बड़ा इंफ्रा बना सकते हैं, और कितना बेटर तरीके से आप चला सकते हैं, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो टारगेट है उन्हीं बड़ी मार्केट पे काम करना। इवन 240 260 की बात नहीं कर रहे हैं, 360 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1 मेगावाट के चार्जर पर भी काम कर रहे हैं। दैट मीन एक साथ 20-20 50-50 बसेज एक साथ चार्ज हो पाए। ओके। और सर मैं अभी थोड़े दूसरे सब्जेक्ट पे पूछना चाहूंगा। हमारी जो BESS और बैटरी जो बैटरी पैक की हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सर, वो हम वैल्यू चेन में, बैटरी की अगर वैल्यू चेन देखें तो उसमें हम लोग कहाँ पे हैं, मतलब वेयर वी वुड लाइक टू बी? ओके, ऑब्वियसली बैटरी की वैल्यू चेन बहुत लंबी है, बहुत सारे इसमें कंपोनेंट है, तो हम कहाँ पे और कैसे देखते हैं आप इसे? सवाल आपका अभी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है। कहाँ देखते हैं, मतलब एज अ प्रोडक्ट, या क्या आप समझना चाह रहे हैं? बैटरी, यस सर, एज अ प्रोडक्ट, मतलब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं फिलहाल? वी आर इनटू असेंबली, और यू नो व्हेन वी से लिथियम आयन बैटरी हमारी मैन्युफैक्चरिंग के यू नो सर पहले आपको ये समझना होगा, सर पहले आपको ये समझना होगा, इंडिया में 99% असेंबलिंग ही होती है बैटरीज की। बैटरी पैक असेंबल ही होते हैं, क्योंकि बैटरी के सेल्स इंडिया में नहीं बनते हैं, इवन चाइना के अलावा कहीं और बनते ही नहीं है। 90% मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स की होती है वो सिर्फ चाइना में होती है। ये आपको पहले समझना होगा। तो कोई भी अगर ये कहता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो आप समझ लीजिएगा कि वो ठीक नहीं बोल रहा। तो असेंबलिंग होती है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड होता है, जैसे BESS है, BMS है, वो आपका अपना कंट्रोल हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, आपके सॉफ्टवेयर अपने हो गए, आपकी एप्स अपनी हो गई, आपकी जो मैकेनिकल डिजाइन है वो आपके अपने हो गए, थर्मल इंजीनियरिंग आपकी अपनी हो गई। यानी कि आपने वैल्यू ऐड करनी है और प्रोडक्ट को इंडिजाइज करना है फॉर इंडिया। वो जरूर कर रहे हैं हम लोग। तो हम वहां पर एक ठीक जगह खड़ा फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा ICAT से अप्रूव हुआ है, और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस पे काम हो रहा है। तो लगता है सारे सर्टिफिकेशन बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके सर, और लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, हम लोगों ने पिछले क्वार्टर में बात की थी, आपने कहा था कि हम लोग 3 व्हीलर जो है, ओके, उसमें हम लोग बैटरी यू नो पैक में उतरना चाहेंगे। ओके सर, वहाँ पे हमें कैसा टेंशन दिख रहा है? सर 3 व्हीलर नहीं बोला था, ई रिक्शा बोला था। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। सर ई रिक्शा, सॉरी, यस ई रिक्शा बोला था, और आज भी बोल रहा हूँ, ई रिक्शा जो सुल्तान की बैटरी है वो ई रिक्शा के लिए ही है। वही मैंने बात अभी थोड़ी देर पहले भी एक और साहब ने ये सवाल पूछा था, उसका जवाब दे चुका हूँ कि OEMs के साथ काम कर रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा लेंथी और स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के साथ अप्रूव करना, उनकी जो मोटर कंट्रोलर्स हैं और चीजें उनके साथ उसको ट्यून करना, तो थोड़ा टाइम लगता है। बट वो सब काम चल रहा है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स का काम चल रहा है।
तो सर ये कब हम देखेंगे इसका मतलब मटेरियल इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू में? इज इट सर हमारे रेवेन्यू में लास्ट एक क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया है उसने पूरे साल के रेवेन्यू पे 1% का इम्पैक्ट डाल दिया ऑलरेडी, तो वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू जी। Thank you. We have a follow-up from the line of Randhir. Please go ahead. सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि फर्दर इक्विटी डाइल्यूशन करने का कोई प्लानिंग है क्या फंड रेज इक्विटी के थ्रू? सर अभी इस पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, प्रोबेबली QIP पे कुछ काम चल रहा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मार्केट समझेगी और कुछ बेहतर होगा तो जरूर करेंगे। सर अभी FY26 के लिए जो भी प्लांट है आपका उसका यूटिलाइजेशन लेवल क्या है सर परसेंटेज में? अराउंड 50% से अबव है FY26 के लिए जो अभी चल रहा है सर। 26-27 की अगर आप बात कर रहे हो तो वो और बढ़ेगा। ये एक बात को आप सवाल को शायद दोबारा पूछ रहे हैं, आप थोड़ी देर पहले भी आपने ये सवाल पूछा था। जी, लेकिन वो FY26 के बारे में नहीं पूछा था, वो FY27 के बारे में पूछ लिया था। सर एक और क्वेश्चन है कि वर्किंग कैपिटल डेज अभी कितना है सर? सर डेट के बारे में आपको बता चुके हैं। नहीं सर, वर्किंग कैपिटल डेज कितना है और यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है वो जानना जी चाहता हूँ। बिल्कुल इम्प्रूव सर, इसकी इम्प्रूवमेंट के सारे पॉइंट्स मैं मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ, मैं एक और रिपीट करना चाहूंगा और आपको फिर बता रहा हूँ कि इसी के लिए मेजर बिजनेस की डाइवर्शन या जो नेक्स्ट ग्रोथ है वो हम रिटेल चैनल से और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन से दिख रहे हैं, सो दैट वर्किंग कैपिटल और बेहतर हो जाए और हमारा टारगेट है कि हम उसको 60-70 डेज पे ले आए। थैंक यू सर। थैंक यू। All right. Thank you. As there are no further questions, I would like to hand the floor over to the management for closing comments. Thank you. So thank you, ladies and gentlemen, for your time and your questions today. FY26 has been a defining year for Servotech, the strongest quarter in our listed history. Our highest ever EBITDA margin and capacity now commissioned to support continued growth. The question you have asked today reflects the genuine engagement that drives us to do better, and we welcome that scrutiny. As we enter FY27, our priorities are clear: operational consolidation, working capital normalization, and disciplined capital allocation. We are committed to delivering on these priorities and to continued transparent engagement with the investor community. On behalf of Vipin and the entire Servotech team, I want to thank our shareholders for your continued trust, our customer and partners for the long-lasting relationship we share, and our employees for their dedication through a year of significant transformation. Should you have any further questions following this call, please reach us to our investor relation team. The contact details are available on our website. We look forward to engaging with you again at our Q1 FY27 result. Thank you and good day. Bye-bye. Thank you. Thank you very much, everyone. On behalf of Servotech Renewable Power System Limited, that concludes this conference call. Thank you all for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.